To all you present out there. Honorable Chief Guest of the day, we are expecting Shri Shrav Qureshi ji. With us present here is guest of honor Shri Kuldeep Manhat ji. Accompanying him is the respected Shri Ves Kadri ji. We are with us worthy Chief Education Officer Shukyan Shri Mohammad Mushtaq ji. We are with us respected Dr. Muzammil Saab. We have with us respected Diet Principal Shri Abdul Majid ji. We have with us worthy Deputy Chief Education Officer Shukyan Shri Javed Ahmed Khan ji. Respected Principals, Zonal Education Officers, Headmasters of Government High Schools, lecturers, masters and their teachers, I wish you a very pleasant welcome on this gracious occasion, and we are extremely delighted that you solicit your gracious presence here. We are extremely happy that we are expecting Shri Shrav Qureshi ji as our chief guest, which will be joining us very soon. आज की इस कॉन्फ्रेंस का फॉर्मली आगाज करने जा रहा हूं मैं, तो इसके लिए हम कलाम पाक की कुछ आयत तिलावत करेंगे, उसके बाद एक नात के दो अशार पढ़ के इसका हम फॉर्मली आगाज करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़्सिमु बिनफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अलन नजम इज़ामा बला कादिरीना अला बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुर अमामा यस्अलु अय्याना यौमुल क़ियामा फ़इज़ा बरिकुल बसर वख़सफ़ुल क़मर वज्जुमिय शम्सु वल क़मर यक़ूलु इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक खूबसूरत नात के दो अशार में आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद इसकी कॉन्फ्रेंस की जो फॉर्मल कार्रवाई है वो हम स्टार्ट करेंगे। जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहां खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियां, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा को सेन ठहरे, कि वो साहिबे काबा को सेन ठहरे। बशर की सरे अर्श
मेहमान नवाजी, ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियां, ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या है। अस्सलाम, थैंक यू। All of cognitive capacities such as critical thinking and problem solving, but also social, ethical and emotional capacities and dispositions, and the policy also recommends recruiting the very best and brightest minds to cater the teaching professions at all levels by ensuring livelihood, respect, dignity and autonomy, while also instilling in the system basic method of quality control and accountability. Taking all the aspects and dimensions of National Education Policy 2020 into consideration, we are tirelessly working hard in whole district to base and direct our teaching, learning process on the guiding principles of the policy. It is obligatory for all the stakeholders of our department, particularly the teaching faculty, to go extensively through the policy and design your short and long-term plans as the principle of New Education Policy 2020. I once again extend my warm welcome on behalf of Education Department District Shopian for the dignitaries on dais and off dais, officers and officials for making this educational conference a grand success. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir, for this lovely set of words. Now I request the operator to kindly play one more video message from one more dignitary from the Bath first. Deputy Chief Education Officer Shopia, officials from Degree College Shopia, principals, teachers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. I am Rees Samadar and I am currently working as Senior Lecturer of Physics at Naji Munawar Boys High Secondary School Shopia. I have been given an opportunity to speak on NEP 2020 by the organizers of this program for 5 minutes. I'll start with the history of education policies in India. The first ever education policy in India was framed in 1968, followed by NPE, National Policy on Education 1986, and then NEP 2020. So NEP 2020 is the third educational policy of independent India. Background of NEP 2020. NEP 2020 was drafted by in a joint venture, we managed to launch mega enrollment drive. We managed to enroll some 7,000 students in various government schools of the district. That means an enrollment of 7,000 students have increased this year. Under the dynamic and visionary leadership of Chief Education Officer Shopian, we managed to set 40 pilot schools for the aim to reduce the learning gaps and to increase this learning outcome. Our students participated in various national level events under the banner Azadi Ka Amrit Mahotsav and Ek Bharat Shresth Bharat. To be frank enough, we managed to achieve, I don't know how many number of positions, a number of, in fact, the scores of students have been awarded by the worthy Lieutenant Governor.
For this, credit goes to Chief Education Officer Shupian, the District Cultural Coordinator Shri Khurshid Ahmed, and of course to the ground level workers, you all teachers and HOIs out there. The department in recent past launched a mega enrollment drive to enroll the out-of-school children in the schools, and we are very much thankful to all of you. We managed to achieve the set target of enrolling 661 out-of-school children back in the schools. Thanks to Chief Education Officer Shopian for this big feat, and thanks to all the principals, headmasters, masters, lecturers, and all the teachers who are present and who have contributed even a bit to this. One more largest feat that we achieved is we organized the Valleys, not only Valleys, we organized the state's largest Tiranga rally where almost 6,000 students participated at once with full patriotic enthusiasm. In general, it would not be left to say that the district education sector is flourishing under the dynamic and visionary leadership of Chief Education Officer Shupian, be it in terms of results, be it in terms of infrastructure, general enrollment ratio. In fact, on every index, we are flourishing. And the full credit goes to each and everybody sitting out there. Thank you very much. If the video message is ready, I'll be asking this operator to kindly play. Musician had to not read pol science, botany, mathematics. No, he can only take music as a subject and start studying it from class 9. This is the main aim. Isn't it that interesting thing that there is less burden on the student? And second is that board exams will be cancelled of the 10th class. There will be boards only in the 12th class. MPhil is closed now, and the student in the first 5 years should be taught in his mother tongue. And the third thing is that the college degree should be of the 4 years, and there will be examined semester-wise in the from the 9th to 12th standard. So by coming up the new education policy, the government is making efforts to make the knowledge more practical, less theoretical. Rajpal Nazik of Government High School, Rafael. In the recent past, he was audited by his honorable LP as well. A very brilliant student, God bless us, a good great career ahead. Meanwhile, we are highly indebted to Principal Government Degree College and other administrative staff of this degree college, Shupian, for lending us this beautiful auditorium for conducting this beautiful program. So thank you very much for lending us this auditorium on the day. It's a very good, well-known fact. In fact, we should not be ashamed to accept the fact with respect to the passage of time. Things get outdated and are obsolete. Same is the case with the current educational scenario. The current educational scenario is working on the pattern of either Sir Lord Macaulay, Buddhist Dispatch or Hunter Commission. In recent past, the Ministry of Education, Government of India, has introduced the National Education Policy. To analyze more on this National Education Policy, I'll call Mr. Marisa Mehta, the lecturer, who will shed light on this topic. Mr. Marisa, please. You know, till now coding was taught to the students who was to become computer engineers. That was too taught in their bachelors. But if we see that by the coming of new education policy, coding is introduced in the class 6. You know, when a student codes, different things happen in his brain. That too, by this, when he codes a lot of things, his brain development. To continue with the conference, let me share the privilege to call Shri Dr. Muzammil Saab on the stage to express his views regarding the conference.
उस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत औलाद। ऑनरेबल एडवोकेट शिराज कुरैशी साहब, चीफ गेस्ट of this teachers conference, respected Kuldeep Manaz ji. That's the main aim of new education policy, that there should be the brain should be developed of a student so that he can. कार्रवाई को मैं आगे बढ़ाऊं। Sir, wait, Sajjad sir. हिंदुस्तानी कश्मीरी भाइयों और बहनों, प्लीज स्टॉप वीडियो फॉर अ मोमेंट प्लीज। विश्व में मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे जो आज के जो चीफ गेस्ट है श्री शिराज कुरैशी जी, वो मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। साथ ही साथ मैं विनती करूंगा हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है श्री कुलदीप जी, वो भी मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ डॉक्टर मुदम्मिल साहब, आप स्टेज पर आइएगा प्लीज। साथ ही साथ मैं विनती करूंगा डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्री जावेद अहमद खान साहब को कि वो स्टेज पे आए। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज शोपियां, वो प्लीज मंच पर आके अपने स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा प्रिंसिपल डाइट शोपियां श्री अब्दुल मजीद जी से वो स्टेज पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। मैं गुजारिश करना चाहूंगा जनाब चीफ एजुकेशन ऑफिसर शोपियान मिस्टर मोहम्मद कुर्ता को कि वो इसे प्रेजेंट करें हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री शिराज कुरैशी जी को। This is the token of honor and love from my side, sir. Meanwhile, I'll be requesting Mr. Wes Qadri sir to please come on the stage and take his place. Sharif Qadri, sorry sir. मैं गुजारिश करना चाहूंगा चीफ एजुकेशन ऑफिसर शुक्रियान को कि वो आज का जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है श्री कुलदीप मनहास जी, उनको बुके देके उनकी इज्जत अफजाई करें। To honor this conference, I request the District Cultural Coordinator to kindly play the national anthem for a moment, and I would request all to stand for due honor and kind protocol of the anthem.
एक चिराग ही काफी है, हजार चिराग स्टेज पर तशरीफ फरमा आज के चीफ गेस्ट, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर, दीगर मेहमान, प्रिंसिपल साहिबान, जड़ियो साहिबान और हमारे मुख्तलिफ स्कूल से आए हुए साथी इकराम, मेरा आप सबको आदाब व सलाम। ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरा ज़िला शोपियां के लिए एक बड़ा खुशी का मकाम है कि हमारे ज़िला में आज ये टीचर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है। टीचर कॉन्फ्रेंस NEP 20 के लिए यहाँ मुख्तलिफ, जैसे बच्चों ने भी बोला, हमारे स्पीकर्स भी बोल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से, तो किसी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए और उसकी शादोमानी की बुनियाद सिर्फ तालीम ही है। तालीम के नूर से ही हम अपने इलाका, अपने मुल्क, अपने माशरे को मुनव्वर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आए हुए आज के चीफ गेस्ट और दीगर जितने लोग हैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलके NEP 20 के असूलों के मुताबिक अपने बच्चों, अपने स्कूलों में पढ़ाने का काम सरे इंजाम दें। जिस अंदाज से हमारे बच्चों के सालाना इम्तहानों के रिजल्ट निकले हैं, नीट में क्वालिफाई किया है, JEE में किया है, इससे ये बात आया है कि हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और उससे भी हमारे टीचर जो कि इनको संवारते हैं वो भी किसी भी तारीफों के मुताज नहीं हैं, वो अपनी एक अलग सी शान है। और मैं हर पल मेरे ये जितने अफसरान हैं वो सारे इसी कावश के पीछे हैं कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम देने की कोशिश करें। तो बाकी यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या वो ये डाइस पे हैं या जितने लोगों ने इसमें इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने के लिए हिस्सा डाला है, मैं उन सब का मशकूर हूँ। वो मीडिया पर्सन हैं या कॉलेज के स्टाफ और प्रिंसिपल साहिबान जिन्होंने हमारे लिए ये हॉल प्रोवाइड किया है, और बिलखसूस जो मेहमान हमारे यहाँ आए हैं बाहर से दूर से, कुरैशी साहब जो कि आज की मेहमान खसूसी हैं, या मेहमान ज़ीवकार कुलदीप मराज जी, सब का मैं मशकूर हूँ और जय हिंद, शुक्रिया। That was Dr. Muzaffer sir with his beautiful voice and enthusiastic speech. In fact, thank you very much, sir. एक कविता है, मुझे बड़ा इंस्पायर किया हुआ है इसने। मैं इसकी 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ आप सब लोगों के लिए, हो सकता है आप भी इंस्पायर हो जाओ इससे। सुर में नहीं, ये सुर में पढ़ी नहीं जाती ये वाली कविता है ना। हाँ, वृक्ष हो भले खड़े, हो गले हो भले, एक पत्र छाओ भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो न ये सब मैं आप लोगों की नजर कर रहा हूँ, सारी की सारी जितनी भी है ना, ये मैं जानता हूँ बिकॉज योर डेडिकेशन मैटर्स अ लॉट। You have proved yourself on every platform, every index, everything. जब भी आप लोगों को कुछ मिला ना, you come out with flying colors. ये मैं सब आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ
कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अब एक और इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को आप बोल कर दीजिएगा, इसके बाद मैं अपने चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाऊंगा। ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रो सुवैद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। थैंक यू वेरी मच। कहते हैं एक शेर याद आ रहा है मुझे, आप सबकी नजर करता हूं। हमने माना कि तगफ्फुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगफ्फुल न करोगे लेकिन हाथ हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। With full privilege, with full honor, I'll be requesting our chief guest of the day, Sri Advocate Shiraz Qureshi sir, to please come on the stage and अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिना किसी भूमिका के शुरू करता हूँ। सभी को मेरा आदाब। मंच पे बैठे हैं, नीचे हैं, सभी बराबर हैं। और आपको मालूम है कि जब मैं आया, इनफैक्ट 2 रातें हो गई जब से मैं सोया नहीं। कल रात को भी नहीं सोया, परसों भी नहीं सोया, वो एक अलग मसला है। पर नॉर्मली मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। जो मुझे जानते हैं पर्सनली वो जानते हैं कि शिराज भाई हमेशा फुल ऑन रहते हैं। पर अभी मैं नर्वस हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं गुरुओं के बीच में बैठा हूँ, उस्तादों के बीच में बैठा हूँ। आपको मैं क्या बताऊंगा, आप ही दुनिया को सिखाते हैं। मैं आपसे खुद सीखने आया हूँ। और जब ऐसी सूरत बन जाए कि उस्तादों के बीच में आपको उस्तादी बतानी है तो वो संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, आपका शागिर्द हूँ, आपसे सीखने के लिए आया हूँ। और मैं बार बार मेरा इंट्रोडक्शन बोलते हैं कि एडवोकेट शिराज कुरैशी, बिल्कुल सही है। मैं एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हूँ, कई तरह से हूँ, इंटरनेशनल लॉयर हूँ। मगर मैं भी कहीं ना कहीं टीचर हूँ। मैं 97 से ऑलमोस्ट लॉ क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, शौकिया पढ़ाता हूँ विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, और बिना पैसों के पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप आज तक अल्लाह का बड़ा करम एहसान है कि 80 बच्चों से ज़्यादा बच्चे जज बन चुके। अब तो डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह भी कई बच्चे हैं, और वकील तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों ही होंगे। तो मैं अपनी कम्युनिटी जो मानता हूँ वो टीचर कम्युनिटी मानता हूँ। तो आप ऐसा समझें कि कोई बाहर से नहीं आया है, ये आपका ही छोटा भाई है जो आपके घर से ही आपके साथ बातचीत कर रहा है। और पहले ही मैंने आपको अर्ज कर दिया कि मैं कुछ सिखा सकता नहीं हूँ, खुद ही नर्वस हूँ। जबकि रोज़ पर डे मैं नॉर्मली 40 से लेके 45-50 केस आर्ग्यू करता हूँ, और बड़े बड़े केस आर्ग्यू करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में भी करता हूँ और हाई कोर्ट्स में भी करता हूँ, मुख्तलिफ कोर्ट्स में करता हूँ। कभी भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होता, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि जो सामने बैठे हुए हजरात हैं उनका ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, परंतु आप लोगों के सामने मेरा खुद का हो रहा है लूज। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, जैसे महाराज साहब फरमा रहे थे कि गुरु एक ऐसा एक कौम अल्लाह ने बनाई कि वो सबको बनाता है। क्योंकि हमने जिनको हीरे बनाए, जैसे मैंने बताया कि 80 बच्चे मेरे ही जज बन चुके हैं, जबकि मैं खुद वकील हूं। पर गुरु गढ़ सकता है, बना सकता है, भले ही वो उसका एक लफ्ज है टीचर है वो, परंतु उसने पूरी दुनिया को बनाया है। और आप ही लोग ऐसे हैं जिनके लोग पांव छूते हैं। कलेक्टर का नहीं छुएंगे, प्राइम मिनिस्टर का नहीं छुएंगे, डॉक्टर का नहीं छुएंगे, वकील का नहीं छुएंगे, ऐसे ही है ना। पर टीचर जाएगा तो बड़े से बड़ा आदमी उठ के नीचे आके उसके पांव छुएगा, या अपनी तरह से सलाम करेगा। जो भी इज्जत दे सकता है जिस भी अंदाज में, वो आपको इज्जत देगा। ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है सोसाइटी के लिए, और इस बात पे हमें फख्र भी करना चाहिए। एक वो दोहा आपने सुना होगा ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद भी वो बताए।
यानी कि ये फरमा रहे हैं कि अगर कोई देवता खड़े हों और गुरु खड़ा हो तो देवता को पहले रिस्पेक्ट करें या गुरु को रिस्पेक्ट करें। तो फरमाया कि पहले गुरु को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि गुरु ने ही बताया कि ये देवता है। तो हमारी जिम्मेदारी माशाल्लाह, और मैं सबको बहुत ही दिल से सलाम करता हूं, क्योंकि मैं भी वही शख्सियत हूँ कि जो टीचर्स को हमेशा रिगार्ड करता हूँ। और मुझे मालूम था कि ये टीचर्स के बीच में मुझे जाना है, उस्तादों के बीच में जाना है, तो मैंने सारे प्रोग्राम्स अपने जो भी थे मुख्तलिफ वो सारे कट करके हमने कहा हम कश्मीर में आएंगे। और दूसरी बात है, कश्मीर से मेरे साथ खास जुड़ी हुई है कि मुझे कश्मीर और कश्मीरियत दोनों बहुत पसंद है। आप मेरी यूनिफॉर्म से देख रहे होंगे, ये कराकोली टोपी मैं दिल्ली में भी लगाता हूँ। कई बार तो 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होता है, तब भी मैं कराकोली लगाता हूँ। तो कई बार लोग कहते हैं भाई साहब ये बहुत गर्म टोपी होती है, उसको उतारो। मैंने नहीं यार, ये कश्मीर की टोपी है, मुझे बड़ी पसंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से मेरा बड़ा वाबस्ता है। मेरे नाना होते थे, वो यहाँ पे हाईकोर्ट जज भी रहते कश्मीर में, बहुत पुरानी बात है। तो मैं बचपन से कश्मीर आ रहा हूँ, कश्मीर को देख रहा हूँ, कश्मीर को समझ रहा हूँ। और मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, जीवा यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको, ग्वालियर में है, उसमें गालिबन 500 लड़के कश्मीर के पढ़ते हैं, लड़के दोनों स्टूडेंट्स। और वो सारे बच्चे मुझे अपना गार्जियन मानते हैं, मुझे अपना बड़ा भाई, अंकल, चाचा, ताऊ जो भी समझते हैं वो मानते हैं। और मेरे घर में जब रमजान चलते हैं, जब रमजान आते हैं, तो मेरी मम्मी उन 500 बच्चों के लिए सहरी का और इफ्तियार का इंतजाम कराती हैं, और सारे बच्चे वही करते हैं। ये मेरे लिए फख्र की बात है, ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरा कश्मीरी परिवार बहुत बड़ा है। अगर मैं, कई लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, मैं बोलूंगा कि अगर मैं कश्मीर में 2 साल के लिए भी आऊंगा तो 2 साल मुझे होटल में खाना नहीं खाना पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई घर में ही खाना मिलेगा। इतनी मेरी कश्मीर से लगाव है। और बीइंग द लॉयर, मैं हमेशा से कश्मीर के मैटर्स को उठाता रहा हूँ, कश्मीर की आवाज़ को उठाता रहा हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट के सामने हो, चाहे वो किसी और के सामने हो, कश्मीर की वॉइस बनने की कोशिश करता रहा हूँ। और हमने कई सारे प्रोग्राम्स कराए जो कश्मीर के बच्चों के लिए कराए, कश्मीर की आवाम के लिए कराए, और कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करने के लिए कराए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे कि हम कश्मीरियों जैसे बने, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कश्मीरी बहुत ही कट्टरता से राष्ट्रवादी होता है और बहुत ही शिद्दत के साथ एक नेक इंसान होता है, और उसका IQ लेवल अल्लाह ताला ने बहुत ही गजब का डाला है। ये मेरा एक्सपीरियंस है अपने स्टूडेंट्स को देख के। अल्लाह की तरफ से वो शिफत है, अल्लाह की तरफ से वो मेहरबानी है, मेहर है कि जो कश्मीरी ब्रीड है वो अपने आप में एक अक्लमंद ब्रीड है, अपने आप में एक अलग उसका IQ लेवल है। और हम समझते हैं कि जो कश्मीरी गए, जहां जहां गए वो, उन्होंने अपना एक नाम बनाया, उन्होंने कश्मीर को पहचान दी, इंसानियत को पहचान दी। मैं जिन जिन को जानता हूँ कश्मीर के, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हों या मेरे साथ के रहने वाले हों, कई सारे अच्छे एडवोकेट्स भी हैं, जजेस भी हैं जिनको मैं जानता हूँ कश्मीरी, वो एक अलग म्यार रखने वाले लोग होते हैं। तो मैं कश्मीर में आके अपने आप को खुद बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि आप लोगों के बीच में आके आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरे साथ बातचीत में भाग लिया। ये सच्चाई है कि मेरे लिए अचीवमेंट है, और मैं इसको कई कई दिन तक याद रखूंगा कि मैं शोपियान में जाके अपने उस्तादों के साथ बैठ के एक बार डिस्कशन किया था। ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात रहेगी, और मैं इसको कई जगह बताऊंगा भी। और हालांकि इसके वीडियोस भी बनेंगे, बन रहे होंगे, और वो वीडियो वायरल भी होंगे, मेरे वीडियो वायरल भी होते रहते हैं मीडिया पे। तो जाहिर सी बात है कि शोपियान को लोग समझेंगे कि शोपियान में एजुकेशन का गढ़ है, एजुकेशन का हब है, यहाँ से तालीम निकलती है, तालीम दी जाती है, और पूरी दुनिया को, बल्कि पूरे कायनात को हम समझते हैं कि शोपियान से जो इल्म की खुशबू है वो जाएगी और जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी झूठी सच्ची बातों को भी कबूल फरमा ले, उसको सच कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आज बात कर रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो मैंने जिस तरह से आपको, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा ना, ऐसे बता दें मुझे, क्योंकि ऊपर से कोई बोल होगा तो बता देंगे मुझे, ऐसा कुछ इशारा करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि अभी जाना है, क्योंकि वो नॉर्मली मेरी कैसेट 45-40 मिनट की हो जाती है, ठीक है ना। पर मैं इतना नहीं बोलूंगा क्योंकि उस्तादों के बीच में ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। मैं अपनी बड़ी मुख्तसर सी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी तो बोरियत हो, मेरी बहनें कुछ उधर से देख रही हैं, तो मुझे ऐसे कुछ इशारा कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि अभी मुझे चुप होना है। हम बात कर रहे थे एजुकेशन पॉलिसी की। तो एजुकेशन पॉलिसी को आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज कि आप सब लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं।
पर उसके कुछ खास पॉइंट्स जो हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से हमने एक बात रखी थी कि इमर्जिंग भारत विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो कई बार किसी के दिमाग में आता है, या हम भी छोटे थे तो हमारे दिमाग में आता था यार कि भाई ये डिग्री हमने ली है, या डिग्री का क्या करेंगे। या कई बार ऐसा होता था कि वो लोग बेचारा डिग्री लिया हुआ है, उसको कुछ काम नहीं मिल रहा, और हम देख भी रहे हैं कि भाई वो कोई मंगोड़े बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, बड़ी बड़ी डिग्री वाले, तो उसका कोई जाया हो रही थी। तो सारे लोगों ने विचार किया, क्योंकि जिन लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनका दोस्त हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। अभी आप लोग देख भी रहे थे, ये सारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, और मैंने बड़ी उनसे रिक्वेस्ट करी, ये लोग आए और आपके साथ में मैंने लाने की उनको रिक्वेस्ट की। मैंने कहा आप जरा जाके टीचर्स के साथ बात कीजिए। सच्चाई है, मेरे जो आने का मकसद है हम सबका कि हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, वो यही है कि वो जिनने एजुकेशन पॉलिसी बनाई है वो आपसे डायरेक्ट राब्ता करें और आपको बताएं कि किस तरह से, क्या उनके बीच में, क्या उनके दिमाग में आइडिया चल रहा था कि किस तरह से हम इस पॉलिसी को बदलें। अदरवाइज पुरानी पॉलिसी भी ठीक ही चली रही थी, उसमें भी कोई ऐसा बात नहीं थी। तो ये हमारा मैन होता था, और हम लोग उनसे भी डिस्कस करते हैं कि आप ये बताएं कि नेशनल पॉलिसी से हम किस तरह से भारत को ऊपर उठाएंगे, क्योंकि हम लोग, सच्चाई है कि अपने देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और टीचर तो मैं समझता हूँ बहुत ही करता है, क्योंकि वो गढ़ रहा होता है बच्चे को। क्यों गढ़ रहा होता है? वो अपनी तनख्वाह के लिए नहीं गढ़ रहा होता, तनख्वाह के लिए तो उसको और ऑप्शन है, खाने कमाने के लिए तो अल्लाह उसको और भी रास्ते दे देगा। पर जब टीचर पढ़ाता है तो अपने दिल से पढ़ाता है कि यार ये मेरा पूरा हिंदुस्तान बैठा है मेरे सामने। वो पूरी जो क्लास होती है ना, वो क्लास को अपना पूरा वतन समझता है, अपना पूरी कौम समझता है, और वो समझता है कि मैं इसको वो दे दूं जो मुझ पे भी नहीं है और मुझसे भी आगे निकल जाए। हर टीचर की ये ख्वाहिश होती है, जब कभी आपका स्टूडेंट डीसी बन के या वकील बन के, इंजीनियर बन के, साइंटिस्ट बन के आपके सामने आता है, आपको सलाम पेश करता है, तो आपका सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है कि यार ये तो सब मैं ही बन गया, भले ही हम अपने टीचर ही रहे। ये हमारे साथ होता है, ठीक है ना। तो हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाए, जो मैंने उनसे डिस्कस करके माना कि मेन मुद्दा है उसका कि हम उस एजुकेशन को उपयोगी बना पाए, उसको स्किलफुल बना पाए, उसको ऐसा बना पाए कि जिससे कि वो अपनी पूरी जिंदगी में उससे दुनिया को भी चलाए, खुद की भी जिंदगी चलाए, और अपने पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को, जहां जहां वो रहता हो उससे वो बेहतरीन कर सके। आपने देखा होगा कि पहले हम बात करते थे, जो एकेडमिक एजुकेशन है वो हमारे भारत की बहुत अच्छी थी, मगर कई बार यूरोप की बहुत अच्छी नहीं थी, या अमेरिका की तो आज भी अच्छी नहीं है जो मैं समझता हूं। तो पर वहां पे लोग स्किल को काम करके देख रहे हैं, पर हम लोगों ने स्किल को थोड़ा सा साइड में किया हुआ था पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में। परंतु अब नई पॉलिसी में जो विचार किया है बड़े लोगों ने, वो ये विचार किया है कि बच्चा डिग्री लेके जाए तो वो उसके काम आए, वो खामोखाम है उसकी बस दीवार पे टांगने के लिए ना रखे, वो जिस भी फील्ड में जाए। प्लस एक और खूबी कोई बताई मुझे, वो खूबी बताई कि बच्चे की एजुकेशन कहीं से टूटेगी नहीं, वो पूरी अपनी एजुकेशन कर सकता है, भले ही उसको 1 साल का गैप हो गया हो या कोई और बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, परंतु उसकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी। पिछले मर्तबा ये सारी चीजें कमियां रहा करती थी, इनको दूर करने की कोशिश की। और एक चीज और है कि इस पॉलिसी में भी अभी और रिसर्च चल रही है, अभी ये मुकम्मल भी नहीं हुई है कि हम इसको पूरा कर दिया है, इसमें और चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। और वो ऐड ऑन चीजें कैसे हो रही है, इन सेमिनार्स के जरिए से ही आप लोगों से बातचीत करके हम आइडियाज देते हैं, आपसे सजेशंस देते हैं कि सर बताइए क्या उसमें और चीज हम कर सकते हैं, क्या और उसमें बेटर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मकसद था काम कराने का, ये सेमिनार का खासतौर पर जो हमने सीओ सर से रिक्वेस्ट की थी, और सीओ सर ने हमारी बात मान के इतना अच्छा कार्यक्रम किया, वो यही है कि हम आपस में बैठ के डिस्कस करें। ये एक शुरुआत है, हम अपने डोर ओपन करेंगे, हम उन लोगों को लेके आएंगे जो पॉलिसी बना रहे हैं, यही हमारा मकसद है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिसी आपको दे दी गई, बस आपको उसको फॉलो करना है, नॉट लाइक दिस। आप उसका अपने सजेशन दे सकते हैं, और मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है, पॉलिसी बनाने वालों से ही मैंने वही बोला है कि आप भी सबकी बात सुनिए, और उसमें हम और बेहतर जो कर सकते हैं वो हम इसको बेहतर करेंगे। इतना सामना मकसद है। तो अभी इतना डोज ठीक है कि अभी और कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि संडे है और लोगों के बहुत सारे काम होंगे। तो जी 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 माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा एक चीज और बताऊं सर कि मैं नॉर्मली भाषण देता नहीं, मैं तो पढ़ने पढ़ाने वाला एक छोटा सा टीचर अपने आप को समझता हूँ, एक वकील समझता हूँ। तो नॉर्मली मुझे भाषण देने की आदत नहीं है, मैं बातचीत की शैली में, उस डायलॉग में यकीन करता हूँ कि हम बातचीत करें, हम लोग आपस में डिस्कस करें, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, बोरिंग ना हो
किसी को ये ना लगे कि यार अब तो घड़ी हो गई, चलो समोसे वमोसे भी खत्म हो गए, अब तो निकलना है, अब वो तो सीओ साहब बैठे हैं तो डर के मारे बैठना है। ऐसा नहीं है। और बहुत अच्छी बात और ये रही कि कश्मीर की जो मैं खासतौर पर शोपियान की बात बता रहा हूँ, मैं उसको अभी इसके रिसर्च पेपर और तैयार हो रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग इसको एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट टाइम पुलवामा में भी किया था ऐसा ही एक सेमिनार, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये शोपियान का भी होगा और जो आगे आगे होते रहेंगे हम उसका भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और वो बात हम सरकार को पहुंचाएंगे और उसमें हम सजेशंस भी मांग रहे हैं। तो मैं आपको इस ओपन मंच से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्योंकि आप लोग उस्ताद हैं, आप लोग वो लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान को बनाते हैं, पूरे सिस्टम को चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपके दिमाग में ही सबसे ज्यादा आइडिया होंगे और आपको प्रॉब्लम्स भी मालूम होंगी और उसके लिए आप एड ऑन भी कर सकते हैं। तो आप वो सारी चीजें सर को दे सकते हैं, सीईओ सर को दे सकते हैं और वो हमें पहुंचा देंगे इंशाल्लाह और हम उनको पहुंचाएंगे जो ये बना रहे हैं और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कोऑर्डिनेशन से काम करिए, ठीक है ना। तो यही मुझे कहना था आपके बीच में और बाकी जो रहेगा वो आगे, ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा है, ये अभी डोर ओपनिंग हो रही है और मैं समझता हूं कि दिल्ली से आके किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी व्यक्ति ने कभी ये कोशिश नहीं की होगी शोपियान में या आके कि हम इन छोटी छोटी बातों से भी डिस्कस करें, आप लोगों को बिठा लें, आपकी भी सुने, अपनी भी बताएं और एक मंच पे आके उसको कोऑर्डिनेट करके चीजों को अच्छी बनाएं, अपने देश को अच्छा बनाएं, अपनी कौम को, अपने माशरे को हम अच्छा बनाने की कोशिश करें। बस ये हमारी छोटी सी कोशिश है और आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों को जो सहयोग किया, इतना अच्छा काम किया। मेरे सहयोगी मना साहब सच्चाई है बेचारे, वो 1.5 महीने से घर नहीं गए हैं और हम लोग तो सफर में ही रहते हैं। ये सूट शायद जो 10 दिन के मेरे फोटो देख रहे होंगे, 20 दिन केवल की, तो सारे फोटो में एक ही सूट है, बाकी कुछ होता नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कौम बढ़ जाए और आप लोग उसमें मील का पत्थर बन रहे हैं। मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज़्यादा आपके पीछे जो आपके परिवार के लोग हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनने आपको आज संडे को आने की परमिशन दी। बड़ी मुश्किल से आप लोग आए होंगे और मेरी बहनें आई हैं, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें कि हम सब सेहतयाब रहें, अच्छे से रहें। अल्लाह हम सबको नेक और सच्चा इंसान बनाने की तौफीक अता फरमा दे। हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पे चलने वाले बन जाएं अल्हम्दुलिल्लाह और इस पूरे मुल्क को हम एक अमन का गहवारा बना दे, तरक्की का गहवारा बना दे, सब मिलके। यही सारी नेक दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे चीफ गेस्ट ऑफ द डे एडवोकेट शिराज कुरैशी सर। थैंक यू वेरी मच सर, इनका खूबसूरत अंदाज़ बयान, खूबसूरत अल्फाज, बहुत बहुत शुक्रिया इनका अपने इन अल्फाज से हम लोग को रास्ता कराने के लिए। बहुत एनर्जेटिक और पुरजोश। कम बोलने के लिए भी शुक्रिया करते हैं सर वी आर वेरी मच हम्बल्ड। आपने कम बोला लेकिन बहुत ना, उससे कम्पेयर भी बहुत ज़्यादा था। थैंक यू वेरी मच सर। लेस वर्ड्स मोर एक्सप्रेसिव। मैं दावत देना चाहूँगा खुशी साहब को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करें विद अ वोट ऑफ थैंक्स। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। Worthy Chief Guest, Advocate Shiraz Qureshi, Guest of Honor, Shri Kuldeep Manazi, Uwais Qadri Sahab, Dr. Muzammil, respected Principal Degree College Shopian, Chief Education Officer Shopian, Principal Diet, Principals of Higher Secondary Schools, Zonal Education Officers, Headmasters of High Schools, Masters and Teachers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adab,
नमस्कार। मैं यहाँ मंच पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट शोपियान की तरफ से यहाँ पे आए हुए आज के हमारे मेहमानी गिरामी मिस्टर शिराज कुरैशी जो कि हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे, और गेस्ट ऑफ ऑनर कुलदीप मनहास, उवैस कादरी साहब और डॉक्टर मुजम्मिल एंड प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज शोपियान एंड प्रिंसिपल डाइट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और इस आज की इस कॉन्फ्रेंस की रौनक जो उन्होंने है वो बख्शी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सामने बैठे प्रिंसिपल्स ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल्स, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स, हेडमास्टर्स ऑफ हाई स्कूल्स, हमारे मास्टर्स, टीचर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने आज संडे के दिन सारा काम छोड़कर यहाँ पर आए और आप लोगों के बिना ये कॉन्फ्रेंस अधूरी थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज शोपियान का, जिन्होंने न सिर्फ हमें एक ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम हॉल आज इस प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड किया, बल्कि वो खुद और पूरा स्टाफ यहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल रखा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया से वाबस्ता तमाम उन पर्सन्स का जो यहाँ पर आज आए, जिन्होंने इसकी कवरेज की और अच्छी अच्छी बातें रिकॉर्ड करके वो लोगों के सामने पहुंचाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम उस कमेटी का जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से यहाँ पर फ्रेम हुई थी, जिसके हेड हमारे सीनियर लेक्चरर मसूद अहमद टैंक साहब कर रहे थे। मैं उस कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम को बखूबी अंजाम दिया। और साथ ही साथ मैं इस बात के लिए अपने आप में फख्र महसूस करता हूँ कि अभी हमारे चीफ गेस्ट ने कहा कि मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में वहाँ से टीचर काम कर रहा हूँ, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। ये मेरे लिए खुशी की है। और बाकी आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता हो, और एक बार फिर हमारे मेहमान का और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। आदाब। Government High Secondary School, Zenapur से in recent past he has been awarded by University Lieutenant Governor. In addition to physical presence, we have got a number of dignitaries present in virtual mode with us. I would like to play some beautiful messages from Bharat First organization. First of all, I would request the operator to kindly play the video of Shri Indresh Kumar ji, please. The video message for all of us from Bharat First organization. We'll wait for a moment.